Amen? Amen. All right, open your Bibles to James chapter 3 verses 16. We will see from the Amplified Classic Version. याकूब 3:16 हम एम्प्लीफाइड अनुवाद से देखेंगे. For wherever there is jealousy and contention, rivalry and selfish ambition, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion, and all sorts of evil and vile practices. जहाँ कहीं, इसीलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ कहीं दुश्मनी और अपने जहाँ विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है. So Bible is saying that jealousy becomes the root of every evil work. तो यहाँ बाइबल बता रही है कि जब हम ईर्ष्या रखते हैं या जलन करते हैं, वो हर एक दुष्कर्म की जड़ है. And many times we see jealousy as just an emotion. और कई बार हम ये ईर्ष्या रखने को एक भावना की तरह समझते हैं. So we think it's okay if sometimes we are jealous. और हमें लगता है कि ठीक है, कभी कभार चलता है अगर हमने कभी जलन रखी तो. But the Bible is saying लेकिन बाइबल हमें यहाँ बताती है that jealousy कि ईर्ष्या रखना becomes the very root. वो जड़ बन जाता है. And you know, jealousy is born from comparison. और आप जानते हैं ये ईर्ष्या रखना या ये जलन करना ये आता है जब हम अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं. When we are not rooted and grounded in our identity in which God made us. जब हम अपनी पहचान में जड़ नहीं पकड़े हुए. So people who live in constant comparison are usually the most miserable people. तो वो लोग जो हमेशा हर समय अपनी तुलना औरों से करते रहते हैं, उनका जीवन ज्यादातर बिखरा हुआ होता है. Because you'll always find somebody better than you. क्योंकि आप हमेशा पाएंगे कि आपसे बेहतर कोई ना कोई है. And as long as you're comparing your life to someone who is better, guess what? We'll have jealousy. और जब आप अपने जीवन की तुलना औरों के साथ निरंतर करते रहेंगे तो क्या होगा? आप जलन करने या ईर्ष्या करने लगेंगे. People who live in jealousy usually are very bitter. वो लोग जो जलन में हमेशा जलन रखते हैं और ईर्ष्या करते हैं, वो बहुत कड़वे लोग होते हैं. Can I say this, that comparison is a joy stealer? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तुलना करने का मतलब है कि आप आनंद रहित हैं? Because there will always be somebody who has a bigger house, a better salary, a bigger car than you. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा होगा कि आपसे बेहतर कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे बेहतर नौकरी, आपसे बेहतर कार, आपसे बेहतर घर होगा. So the pursuit of our life is not after the bigger and better. तो हमारे जीवन की जो उद्देश्य है वो एक बड़ी कार नहीं है. You know, we are not running after the bigger and better. हम इसके पीछे नहीं भाग रहे कि हमें और ज्यादा बेहतर और ज्यादा बड़ा कुछ मिले. Because that pursuit is never ending. क्योंकि वो उद्देश्य ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता. But the Bible says if we pursue, we have to pursue Him and His kingdom and His righteousness. लेकिन बाइबल बताती है कि यदि हमें किसी बात का पीछा करना है तो वो है परमेश्वर और उसका राज्य और उसका हृदय. Amen. We are pursuing His kingdom. We are pursuing Jesus. We want to know Him more. हम यीशु का, उसके राज्य का, उसका हम पीछा कर रहे हैं. हम उसको और ज्यादा जानना चाहते हैं. Amen. Amen. You know, whenever you see someone who is doing better than you, जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो जीवन में आपसे बेहतर कर रहा है, उन्नति कर रहा है, you can have two responses. आपके दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं. Either you can become jealous या तो आप ईर्ष्या रख सकते हैं and fight them और उनसे लड़ सकते and हैं hate them और उनसे नफरत कर सकते because हैं you wanted to be them, क्योंकि आप उनकी जगह होना चाहते but हैं. because you're not them, क्योंकि वो नहीं है so you hate them. तो आप उनसे नफरत करते हैं. Or या फिर you can be inspired by them.
या फिर आप उनसे प्रोत्साहित हो सकते हैं। You can go to them आप उनके पास जा सकते हैं and say, I want to learn from you. और कह सकते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। That's why the Bible says, people who are humble, they shall be exalted. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो लोग जो नम्र हैं वो ऊंचाइयों पर उठाए So जाएंगे। whenever you see someone who is doing better and who is doing something that you want to do, humble yourself, go to them and ask them about their journey. तो इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति को देखें जो आपसे बेहतर कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, तो आप उनके पास जाएं, नम्र बने और कहें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे सिखाएं, मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ। Don't fight them. उनसे लड़े नहीं, Get inspired by them. उनसे प्रोत्साहित होए। You know, so many people are trying to fight those whom God had ordained to bless them. और कई लोग उन लोगों से लड़ते हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि वो उनको आशीषित करेगा। Amen. Look at Lucifer. लूसीफर को देखें। The Bible says he was a beautiful archangel. बाइबल बताती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत एक स्वर्गदूत था। God had adorned him with the beautiful precious stones. परमेश्वर ने लूसीफर को खूबसूरत रत्नों से उसको सजाया था। But somehow he was not satisfied in his rank. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इसमें संतुष्ट नहीं था। He was not grateful for the place God had given him. वो उस बात के लिए धन्यवादित नहीं था जो परमेश्वर ने उसको जगह दी थी। What happened in heaven? क्या हुआ स्वर्ग में? Jealousy. ईर्ष्या। He got jealous of God. वो परमेश्वर से जलन रखने लगा, ईर्ष्या करने लगा। And he said, I want to be like him. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ। And jealousy gave birth to hatred and bitterness. और उस ईर्ष्या ने नफरत को जन्म दिया। And once who was a creation of God became the enemy of God. और वो जो एक समय परमेश्वर की सृष्टि था वो परमेश्वर का दुश्मन बन गया। What if he would have humbled himself and be grateful? क्या होता यदि वो अपने आप को नम्र करता और धन्यवादित होता जो परमेश्वर ने उसको जिस तरीके से रचा था उसके। But see, that's what jealousy does. लेकिन यही है जो ईर्ष्या करती है। If you'll allow jealousy in your heart, यदि आप अपने हृदय में ईर्ष्या को जगह देंगे, you will start hating those who should be your role models. आप उन लोगों से नफरत करने लगेंगे जिन लोगों से आप सीख सकते हैं। Don't fight the hands God has ordained to bless you. उन हाथों से नफरत ना करें, उनसे लड़े ना जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कि उनके द्वारा आपको आशीषित कर सके। Look at the story of Abel and Cain. हाबिल और केन की कहानी को देखें। Both brought an offering to God. दोनों परमेश्वर के लिए एक भेंट लेकर आए। The Bible says God received Abel's offering, but God rejected Cain's offering. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और केन की जो भेंट थी उसका इनकार किया। And our Father is not unjust. और हमारा पिता अन्यायी नहीं है। So he told Cain. उसने केन से कहा। He said, Cain, उसने कहा केन, sin is waiting for you at the door. पाप तेरे लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। But you should subdue it. लेकिन तू उस पर प्रभुता कर। And Cain, if you will do what is right, will you not be accepted? और केन, यदि तू सही करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? That means there was a right way to offer to God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को भेंट देने का एक सही तरीका है। What would have happened if Cain would have gone to his brother and said, Brother, God has received your offering. That means you know how to offer it right. Can you teach me as well? क्या होता यदि केन हाबिल के पास जाता और कहता कि भाई परमेश्वर ने तुम्हारी भेंट को स्वीकार किया है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि भेंट करने का सही तरीका क्या है? But he got jealous of his brother because his brother was received by God. लेकिन उसने जलन करी, ईर्ष्या करी क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था। And jealousy turned into hatred. और ईर्ष्या नफरत में बदल गई। And he killed his brother. और उसने अपने भाई को मार डाला। The very brother who was supposed to be his role model, the very brother who was supposed to be his teacher, he killed him.
वही भाई जो उसको सिखा सकता था, जो उसका शिक्षक बन सकता था और उसको भेंट करने का सही तरीका बता सकता था, केन ने हाबिल को मार डाला and became a vagabond. और एक भगौड़ा बन गया। So many people keep running from one church to another church to another. और कई लोग एक कलीसिया छोड़ दूसरी और फिर तीसरी कलीसिया में भागते रहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनको परमेश्वर ने उनके जीवन में नियुक्त किया है कि वो उनको सिखा सकें और उनको सही कर सकें जब वो गलती करते हैं। Why do you think successful people are hated in this world? आपको क्यों लगता है कि जो सफल लोग हैं उनसे इस दुनिया में नफरत की जाती है? Whenever somebody sees someone successful, usually the attitude is, oh, he must be a cheater. He must have done something wrong. ज्यादातर जो सफल लोग हैं जब उनको दुनिया देखती है तो कहते हैं कुछ धोखेबाजी करी होगी इस व्यक्ति ने, कुछ तो गलत सलत किया होगा। Oh, he's driving a nice car. Maybe he's a con man. ओ ये बढ़िया गाड़ी चला रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ करी है इसने। And I'm not just talking about possessions, but when you see someone thriving in life, someone who is happy, someone who is joyful, people say, oh, he's faking it. How can he be happy all the time? और मैं सिर्फ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई इंसान है जो अपने जीवन में बहुत खुश है, बहुत उन्नति और तरक्की कर रहा है, तो लोग कहते हैं अरे झूठ मूठ का हंस रहा है, इतना खुश कैसे रह सकता है। But what if, rather than being jealous, we will get inspired? लेकिन क्या होगा यदि हम ईर्ष्या और जलन ना रखकर उनसे प्रोत्साहित हों? Amen. A humble person is a teachable person. एक नम्र व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जिसको सिखाया जा सकता है। And if you are humble, God will teach you even from little kids. और यदि आप एक नम्र व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको छोटे बच्चों के द्वारा भी सिखाएगा। It's my daughters who have taught me about the loving heart of our Father. यदि मेरी बेटियों ने मुझे पिता के उस प्रेमी हृदय के बारे में बताया है। But what happens when we become prideful, when we are jealous, when we think we know it all, we shut every avenue from which we had to learn. क्या होता है जब हम घमंड से भर जाते हैं और कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने जीवन के हर एक उस दरवाजे, हर एक उस रास्ते को बंद कर देते हैं जहां से कि हम सीख सकते हैं। Don't allow jealousy in your heart. अपने हृदय में ईर्ष्या और जलन की भावना को कोई जगह न दें। Jealousy is poisonous. ईर्ष्या रखना जहरीला होना है। Because if you are jealous of somebody and if they win, you will receive it as you have lost. और यदि आप ईर्ष्या रखते हैं, जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या रखते हैं, जब वो अपनी जिंदगी में किसी भी बात में तरक्की करेंगे या जीतेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप हार गए। You are looking for a job, your friend is looking for a job, and he got a nice job. आप एक नौकरी तलाश कर रहे हैं, आपका दोस्त एक नौकरी तलाश कर रहा है और आपके दोस्त को नौकरी मिल गई। What happened? क्या हुआ? Soon after that, you don't want to see his face. थोड़े ही समय के बाद अब आप उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। You don't want to receive his call. आप उसका फोन नहीं उठाना चाहते। What happened? क्या हुआ? Did he do anything wrong to you? क्या उसने आपके साथ Did he कुछ गलत harm किया? you? क्या No, just because he got a job that you wanted, you allowed jealousy in your heart. सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो नौकरी आपको चाहिए थी वो उसको मिल गई, आपने जलन और ईर्ष्या को अपने हृदय में जगह दे दी। What if you would have gone to him and said, "Can you tell me how you gave the interview? What was the way that you answered the questions that they were asking you?" क्या होता यदि आप अपने दोस्त के पास जाते और पूछते ऐसा क्या हुआ, तुमने ऐसे कौन से सवालों के जवाब दिए, किस तरीके से दिए कि तुम्हें ये नौकरी मिल गई, मुझे भी सिखाओ। Abel had done no wrong to Cain. हाबिल ने केन के साथ कुछ गलत नहीं किया था। There was absolutely nothing wrong that he did. उसने कुछ भी गलत नहीं करा था। But still Cain killed him. लेकिन फिर भी केन ने हाबिल को मार डाला। You know, so many people hate you because you are blessed by God. आप जानते हैं कई लोग आपसे नफरत करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है। You have done them no wrong. आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। But because they see the blessings of God in your life. लेकिन क्योंकि वो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं।
So rather than lusting for it, if they would have been learning, they would have received the same. तो बजाय इसके कि वो इन चीजों के लिए जलन रखते लेकिन आपसे सीखते, तो वो भी आज परमेश्वर की आशीषों का फायदा उठाते। Amen. Many times we don't even pay attention to our heart. कई बार हम अपने हृदय की ओर ज्यादा ध्यान भी नहीं लगाते। So many believers, they just want to go out and preach the gospel and heal the sick, and that is powerful. That's our mandate. Jesus has told us to do that. और बहुत से विश्वासी चाहते हैं कि वो जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें और बीमारों को चंगा करें, और ये बहुत अच्छी बात है। यीशु ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम ऐसा करें और हमें करना चाहिए। But maturity is not that. लेकिन सयाना होना ये नहीं है। You can do all of that and still you can be a very immature believer. आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक सयाने विश्वासी नहीं बन सकते। Because the day we will stand before God, क्योंकि जिस दिन हम यीशु परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, we will not be judged on what we did will be judged on our intentions. तो हमारा न्याय इस बात से नहीं होगा कि हमने क्या क्या प्रभु के लिए किया, लेकिन हमारे मन के उद्देश्य और किस इंटेंशन से हमने करा, उससे फर्क पड़ता है। Maturity has to do with how you take care of your heart. सयाना होने का मतलब है कि आप अपने हृदय की जिम्मेदारी, अपने हृदय का ख्याल कैसे रखते हैं। One time in Africa there was an outbreak of a disease. अफ्रीका में एक बार एक बहुत बड़ी महामारी आई। People started getting diarrhea, they were nauseated, and they started dying. और उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनको दस्त आने लगे, उल्टियां करने लगे और लोग मरने लगे। So the news went to the city. और ये जो खबर थी ये शहरों तक पहुंची। And they sent a team of experts to find out what's wrong. और उन्होंने एक्सपर्ट्स की एक टीम को भेजा ये जानने के लिए कि क्या हुआ है। After doing research for days, they found out that the water was contaminated. और कई दिनों की छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि जो वहाँ का पानी है वो खराब है। So they traveled uphill for days and went to the source of that water. और फिर उन्होंने काफी दिनों की लंबी चढ़ाई करी और जो उस पानी का स्रोता था वहां तक पहुंचे। It was a mountain stream. और पहाड़ से उस पानी आ रहा था। And a fat pig got stuck in that hole from where the water was coming out. और एक बड़ा सूअर था जो उस जगह पर अटक गया था जहां से पानी निकल रहा था। That pig died and his flesh was rotten. और वो सूअर वहीं ही मर गया था और उसका पूरा मांस सड़ गया था। And because of that, the entire water was being contaminated. और इसकी वजह से जो सारा पानी था वो दूषित हो गया था। The Bible says in Proverbs 4:23, guard your heart, from out of it flows the issues of life. नीति वचन 4:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। See, that's the difference between religion and kingdom. Religion focuses so much on external. What kind of clothes is this man wearing? What kind of hairstyle he has? What kind of shoes he's wearing? But the Bible says God does not look at the outward appearance. His eyes penetrate and go deeper, and he sees what is hidden in your heart. धर्म में और परमेश्वर के राज्य में यही फर्क है। धर्म हमेशा बाहरी रूप रंग पर जोर डालता है कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल बनाए हैं, कैसे जूते पहने हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे हृदयों के मकसद और उद्देश्यों को जांचता और परखता है। So many believers have lost that joy of salvation and they don't know why. और बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिन्होंने उस उद्धार के आनंद को खो दिया है और वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो गया है। Because something unclean is stuck at the source. क्योंकि कुछ ऐसा है जो दूषित है और वो उनके उस स्रोते पर आकर के अटक गया है। They've allowed offenses, bitterness, criticism to go deep into their heart and allowed that to contaminate their heart, and then everything that comes out of that heart is contaminated. और उन्होंने बुरा मानना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना, ये सबको अपने हृदय में जगह दे दी है, और उसके बाद जो कुछ और वो आकर उनके हृदय में अटक गई है, उसके बाद जो कुछ उनके जीवन से निकलता है वो सब दूषित होता है।
You know, we can do ministry with such a wrong intention. हम सेवकाई गलत उद्देश्यों के साथ भी कर सकते We हैं। can compete with other churches in the city and say we want to be the biggest, we want to be the largest because we want to show we are something. And in God's eyes, that is a contaminated ministry. और हम औरों के साथ तुलना कर ये अब कह सकते हैं कि हम एक बड़ी सेवकाई चाहते हैं, बड़ी कलीसिया चाहते हैं, क्योंकि हम औरों को दिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर की नज़र में ऐसी सोच और ऐसी सेवकाई एक दूषित सोच है। Can I say this? क्या मैं ये कह सकता हूँ? I don't have to have what you have. मेरे पास वो होने की जरूरत नहीं है जो आपके पास है। I don't have to do what you do. मुझे वो करने की जरूरत नहीं जो आप करते हैं। You don't even have to like me for me to be happy. और मेरे खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे पसंद करें। Because my joy is not based on what you think about me. My joy is based in my identity that is in Christ Jesus. मेरा आनंद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा आनंद इस मेरी पहचान पर जो यीशु मसीह मेरे बारे में कहता है उस पर निर्भर करता है। Come on, turn to your neighbor and say, quit the rat race. अपने पड़ोसी की ओर देखें और बोले इस चूहा दौड़ में भागना बंद करें। Because if you're in a rat race and you want to be the biggest, you want to be the largest, because you want to show off that you are someone, guess what? Even if you come first, you are still a rat. क्योंकि इस चूहे की दौड़ में मैं आपको बता दूं, यदि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप सबसे बेहतर और सबसे बड़े हैं, और यदि आप जीत भी गए तो भी याद रखिए आप चूहे ही रहेंगे। My identity is secured that I'm loved by my heavenly Father. मेरी पहचान इस बात में है, इस बात में सुरक्षित है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। I don't do what I do so that I can get brownie points from God and so that God will love me more. He already loves me with an everlasting love. मैं जो भी कुछ करता हूँ वो इसीलिए नहीं करता कि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं और वो मुझसे और प्रेम कर सके। मैं जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ परमेश्वर ने मुझसे अनंत से प्रेम किया है। You know, the Bible says that Jesus gave talents to different people according to their ability. यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया बाइबल में और कहा कि उसने अलग-अलग लोगों को उनकी हैसियत के उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको तोड़े दिए। I don't have to be jealous because your ability is more than me. I have to focus on that I want to serve God with all of my ability. मुझे आपकी काबिलियत देखकर ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी, लेकिन मुझे ये देखना है कि जो मेरी काबिलियत है, जो मुझे दिया गया है, मैं अपने उस पूरे मन और अपने पूरे जीवन से उसकी सेवा कर सकूं। If my father gave me one talent, then I'll be faithful in that one talent. यदि मेरा पिता मुझे एक तोड़ा देता है तो मैं अपने उस एक तोड़े में पूरा विश्वास योग्य If हूं। my father has given me 5 talent, then I'll be faithful in 5 talent. यदि परमेश्वर ने मुझे 5 तोड़े दिए हैं तो मैं उन 5 तोड़ों में विश्वास योग्य But रहूंगा। guess what? लेकिन सोचिए क्या, If you look at someone else who got 10 talent and you got jealous, you will do nothing with the talent that God gave you. यदि आप देखें कि परमेश्वर ने किसी को 10 तोड़े दिए हैं और आपको 5, और आप उस 10 तोड़े वाले व्यक्ति से जलन करने लगे, तो सोचिए क्या होगा। आप अपने उन 5 तोड़ों का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। Oh God, I want to do ministry, but I just have 20 people. It's been 10 years. So what? Love those 20 people with all your heart. Build them up. Equip them in Christ. Because Bible says he who is faithful in least, Hallelujah. he will be given much. आप कहेंगे कि प्रभु 10 साल हो गए और मेरे पास सिर्फ 20 ही लोग हैं, तो मैं कहूंगा तो क्या आप उन 20 लोगों से बेइंतहा प्यार करें, उनको सिखाएं, उनको सशक्त बनाएं, क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। Amen. Amen. Can I say this, that your father has kept an inheritance for you which has your name written in it. और क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके पिता ने आप सबके लिए एक मिरास रखी है, जो और वो खास तौर आपके लिए रखी है और उसमें आपका नाम लिखा है। So rather than getting jealous when somebody else gets blessed, God didn't take it from your inheritance and gave it to him. जब आप देखें किसी को आशीषित होते हुए और तरक्की करते हुए, तो आप उससे जलन मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी मिरास में से निकाल कर उसको कुछ नहीं दिया। Amen. Your portion is your portion. आपका
आपका जो भाग है वो आप ही का भाग है, किसी और का नहीं। It was your portion from eternity. Before you were even born, God had kept your name on it. अनंत से भी पहले, जब आप रचे भी नहीं गए थे, उससे पहले परमेश्वर ने आपके लिए एक भाग रखा था और वो आप ही का है। Amen. You know, the Bible says that we are His family. Ephesians chapter 3 says that God has a family in heaven and God has a family on earth. इफिसियों 3 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक परिवार है स्वर्ग में और परमेश्वर का एक परिवार है पृथ्वी पे और हम उसका परिवार है। What happens if one of your family member does amazing? क्या होता है जब आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति खूब तरक्की करे या कुछ बहुत अच्छा या अद्भुत करे? Wins the gold medal, कोई गोल्ड becomes a मेडल champion in some field. किसी भी क्षेत्र में बहुत तरक्की करे, The entire family is so proud. The entire family rejoices. जब कोई एक व्यक्ति उन्नति करता है तो पूरा परिवार उसके साथ खुशी मनाता और आनंद करता और बहुत घमंड करता है। If we really say that we are His family, then why do we get jealous when we see our brothers and sisters thriving? जब हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं तो क्यों हम जलन रखते हैं जब अपने ही भाई और बहन को तरक्की करते हुए देखते हैं? Why don't we rejoice and we say, thank you, Father, for blessing my brother. Thank you, Father, for blessing my sister. क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे भाई को, मेरी बहन को आशीषित किया है। Amen. Don't let the enemy steal the joy of your salvation. होने दे कि शैतान आपके उस उद्धार के आनंद को ना चुरा पाए। So many of us are trying to build an external world wherein we have completely ignored an internal world. हम में से बहुत से लोग अपनी उस बाहरी दुनिया को बनाने में लगे हुए हैं जबकि हमारा अंदरूनी मन, हमारा भीतरी जीवन बिखरा हुआ है। Some people are carrying that bitterness for what has happened 30 years ago. कई लोग अपने मन में जो उनके साथ 30 साल पहले हुआ उसकी कड़वाहट आज तक लेकर घूम रहे हैं। And they don't allow God to heal them. और वो इस परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि परमेश्वर उनको इस कड़वाहट से छुटकारा दे। The Bible says, do not remember the former things. Behold, I am about to do a new thing in your life. बाइबल बताती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और देखो मैं तुम्हारे बीच एक नई बात करने वाला हूँ। If you keep beholding the old things, you will never be able to see the new things that God has in store for you. यदि आप हमेशा अपनी पिछली पुरानी बातों पर ध्यान लगाए रखेंगे, उनको पकड़े रखेंगे, तो आप नजरअंदाज कर देंगे और नहीं देख पाएंगे उन नई बातों को जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। And one thing the enemy plays tricks with our mind is he convinces us by telling us no one understands me. और एक झूठ जो शैतान हर एक विश्वासी से बोलता है कि कोई भी तुझे समझ नहीं सकता। Oh brother, if you knew what I had gone through. ओ भाई, यदि तुम्हें पता होता कि मैं कितने बुरे समय से गुजरा हूँ। I just want to crash your pity party right now. मैं आपकी जो ऐसी तरस से भरी हुई सभाएं हैं, पार्टियां हैं, उनको खत्म करना चाहता हूँ। There is nobody here who was not rejected, not betrayed, not was wronged by someone else. We all, as long as we live on this earth, we will have to go through hurt and pain and betrayal. यहाँ पर बैठा ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसने कभी धोखा ना खाया हो, जिसके बारे में लोगों ने कुछ गलत ना कहा हो। और मैं आपको बता दूं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, ठोकरें लगेंगी, दिल दुखेगा, लोग धोखा देंगे। Amen. If you say no, I want a perfect environment, then wait, Elon Musk is maybe trying to colonize Mars, so you can go there where there are no people, because as long as you are in the midst of people, there will be hurt, there will be betrayal, people will do bad things against us. यदि आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर ये सब ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक लोग हैं, जब तक आप लोगों से घिरे हुए हैं, दिल दुखेगा, बुरा मानेंगे और धोखा खाएंगे, ये सब चीजें होंगी। या फिर मंगल ग्रह में चले जाओ, या और either go to Mars. right? But it is in those situations God teaches us to love like Him.
लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना. You know, we all say, "Oh Jesus, I want to love like you." हम सब प्रार्थना करते हैं कि ओ यीशु मैं तेरी तरह प्रेम करना चाहता हूँ. Dangerous prayer. खतरनाक प्रार्थना है. Amen. Dangerous prayer. खतरनाक प्रार्थना है. Because guess what? क्योंकि सोचिए क्या, He will give you many opportunities to be like him. क्योंकि वो आपको ऐसे बहुत से मौके देगा कि आप उसकी तरह प्यार कर सकें. And then he would say, "Son, daughter, you said you want to be like me. Come on, I live in you and you can do all things through me. So now forgive that person. Let it go. Bless those who persecute you. Bless your enemies. Do not return evil for evil. Do good for evil." और प्रभु कहे, जब आपको ऐसे मौके देगा, वो कहेगा मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम करो, उनको श्रापित ना करो पर उनको आशीषित करो, उनके साथ बुरा मत करो पर उनके साथ अच्छा करो, वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने सबसे किया, माफ करो. We cannot learn to love in perfect environment. हम प्रेम करना तब नहीं सीख सकते जब सब कुछ हमारे आसपास सिद्ध है और सही चल रहा है. Right? So what happens? Young people watch a lot of Hollywood, Bollywood movies, and they see all the date nights and all the amazing things, and they're like, "Wow, we want to get married." और जवान लोग बहुत सी फिल्में देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे पेड़ों के आगे पीछे नाच रहे हैं, तो उनको लगता है कि शादी कर लेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा. But what happens behind the scenes they don't show you. लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी वो नहीं बताते. So you are so amazed, you're on cloud number 9 and then you get married. और आपके तो पैर जमीन पर है ही नहीं, आप चाहते हैं कि बस हमारी शादी हो जाए. And then you say, "Oh, my wife is a cow." और फिर आप कहते हैं मेरी बीवी तो बिल्कुल गाय है. And then at night 2 horns come out. लेकिन रात में उसके 2 सींग निकल आते हैं. And vice versa, okay? Or the husband has the horn. Yeah, I see some women are like, "You wait, pastor. We want to talk to you after the meeting." कुछ बहनें यहाँ कह रही हैं, अरे भाई आपको पता Yeah. नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पति के निकल आते हैं, आपको बताएंगे बाद में. Right? I think marriage is the perfect way, the perfect training school where God designed that school to teach us to love like Him. आप जानते हैं शादी परमेश्वर ने एक ऐसी चीज रखी है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम बिना शर्तों वाला प्रेम करना सीख सकें. You know, Jesus told Peter, if anybody wrongs you, you need to forgive them 70 times 7. One brother was asking me, how will one person wrong you 70 times 7? He was not married. I mean, like, I'm not saying wrong in the sense, but offend, yeah. यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि यदि पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कितनी बार माफ करना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा 70 गुना 7. तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यीशु मसीह तो शादीशुदा भी नहीं थे, उनको कैसे पता. Okay. Just a joke, okay? But yes, we learn to love in difficult situations. So when a couple gets married, they have this honeymoon period. जब शादी होती है तो उनका एक हनीमून पीरियड होता है. Where one is honey, the other is moon. जहाँ पर एक हनी है और एक मून. And then when they come back, the real training starts. लेकिन जब वो उस हनीमून से आते हैं तो उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है. And it's very similar when new people come to church. और ये बिल्कुल वैसा ही है जब नए लोग कलीसिया में आते हैं. So, wow, this church is amazing. वो आते हैं कहते हैं वाह ये चर्च. I found my family. ओ मुझे मेरा परिवार मिल गया. And then they meet difficult people. और फिर वो थोड़ा मुश्किल लोगों से मिलते हैं. Somebody doesn't greet them the way they wanted them to greet them. कोई लोग उनसे उस तरीके से नहीं मिलते जैसा कि वो चाहते थे कि उनसे मिला जाए. They see a group that has gone to a restaurant and they were not invited. और वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो रेस्टोरेंट गए और हमें नहीं बुलाया.
And something starts boiling in them. और फिर उनके अंदर कुछ होने लगता है. And that is the time we learn to love like Jesus. और वही वो समय है जब हम यीशु की तरह प्रेम करना You know, somebody came to me and he was like, Pastor, I'm so offended. You know, these groups, they keep going to restaurants and they do party and they don't invite me. I said, brother, I'm with you. They don't invite me as well. और एक भाई मेरे पास आया और कह रहे कि भाई मैं बहुत ही बुरा माना हुआ हूँ. एक झुंड है, ये लोग जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं और कभी भी मुझे नहीं बुलाते. और मैंने कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वो मुझे भी कभी नहीं बुलाते. Amen. All right. The reason why we gather is because of the blood Jesus Christ has shed. And he calls us his family. एक कारण जिसकी वजह से हम सब मिलते और इकट्ठे होते हैं वो है कि यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया. हम सब एक परिवार हैं. And in this gathering, we learn to love like him. और जब हम ऐसे मिलते हैं हम सीखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें.